आपने कहा कि आपका जन्म भागलपुर, तो भागलपुर की कितनी यादें आपके पास हैं? कैसे याद करते हैं भागलपुर? भागलपुर सिर्फ जन्म स्थान है, पर ज़्यादा पढ़ाई उसके बाद पटना में किया है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है पटना में। मैंने भागलपुर की यादें हैं कि हमारा घर है और हम छुट्टियों में आया करते थे। हाँ, तो छुट्टियों में आया करते थे, वो हमारी यादें हैं। सो उसके बाद बस अभी तो आना जाना उतना नहीं हो पाता। वही यादें, गंगा है हमारा भागलपुर, तो वो यादें हैं कि वहाँ पर जाते थे। पटना वुमेंस कॉलेज से, हाँ पटना वुमेंस कॉलेज से वहाँ से किया। उसके बाद वहाँ से मैंने वहाँ से जॉब किया है इंटर क्या जस्ट फिर वहाँ से फिर मैं पुणे। इस वक्त रिसर्च भी उसके भागलपुर में आप पटना में, फिर आप पुणे में, ये जो यात्रा तो कैसी यात्रा आपको याद कैसे आती है? Actually, देखा जाए this journey is very memorable for me, very challenging for me as well, because of from Bhagalpur to Patna, language is Hindi, but after that I moved to the Pune, so I had a different obstacle for that, learning the Marathi, and I'm fluent in Marathi as well, because I love learning all the new languages. So that is really good, it's my strength actually. तो पुणे में भी मुझे ऐसा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ से आके बहुत यंग एज में आके चाहे वहाँ पे करना, और मैं बताती हूँ मुझे बहुत खुशी होगी कि वहाँ पे भी मैंने अपना वो टॉप किया, खाली इसमें पढ़ाई में नहीं, मैंने इसमें वहाँ पे मैं बैडमिंटन में खेलती थी। हाँ, तो आई वाज द यूनिवर्सिटी चैम्पियन ओवर देयर एज वेल। So I just come, taken all the obstacles from there and just trying to prove myself. So when we just after marriage, I just went to London. Over there is another challenge for me, because before that, I really accepted the challenge. So it's going to be easy for me over there as well, because I think it's another challenge for me, and I have to master all those things as well. So I need to तो वो ये जर्नी द चैलेंज और बहुत अच्छी मेमोरी भी है, इट्स अ वेरी लर्निंग थिंग्स फॉर मी। पुणे में आपके पास चैलेंज था एक लैंग्वेज सीखने का, आपने सीखी और फ्लुएंटली आपने वहाँ का लैंग्वेज स्टाइल भी आपने वहाँ लंदन में क्या चैलेंज है जैसे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो मुझे 25 इयर्स हो गए वहाँ पे रहते हैं। अभी 25 years I can see that lots of changes happened, but before that initially definitely beginning that was the language again. So if you think if you can speak English, but it's not the accent was totally different. So that's I was finding very challenging. Culture was different, and that time the acceptance of the Indians is very the different as well. They don't just think about they don't know anything about those things. They're not that skilled. But after the getting their degree from there, they can see that that is what is their perspective of what is not correct. So the learning and fitting with those culture, accepting, adopting the culture was a really difficult journey. So that's the way. But now things changed. There's prospectus change, and before that you mentioned about, now look at our India with the Prime Minister over there. So people they have all the different prospects. So the definitely the culture and the language. एक चैलेंज सबको होगा तो आप जब वहाँ गए आपके कोई थे
अकेले तो ये with my husband, yeah, with my kids, yeah. एक चैलेंज तो जो एनआरआई जो उनके साथ भी एक मिला जुलना और वो उनका भी एक एक्सेप्टेंस मुझे लगता बड़ा इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, yes. और उसके बाद जो इंग्लिश रेंज है तो दोनों से कैसे मैनेज कैसे उनके सामने आपको प्रूव किया? The first thing I don't need to like I don't what happened when my kids they're in the school. First of all, my journey started in this way. When my children they're in the school, so like over here we have children they have the books, they have the bags, so when they come back to the home and we find okay, so what you're doing, what is your homework? We start the conversation with our child like that. Over there's no books, nothing. The children they just go to school, bare hand, just they have the lunch box and that's it. So when they come back and it's asked okay, what happened, what you learned. They just said lots of things, but I was not very convinced because I brought up in India, so we have the different education system. So we have our homework, we have the routine, we have the certain textbooks to read, and the parent. I really want my children to, I really want to help my children with them. So in that one, my masters and everything in a different area, but I just changed my, before that I was thinking I was going to pursue my career in what I have achieved in life. And after that I just decided, no, I have to help my kids. So I will start thinking about going into the teaching. So I have to learn some new things over there. So I just did the course over there, and after that I become a teacher. So when, the proving, like you just said, how I prove myself. So becoming a teacher, I just prove myself, and then I just realized, oh, this is a different system over here, but I'm really pleased, they have to learning and all those kind of things. So I just, having another degree, become a teacher, then I just prove myself over there, and don't I belong to this society as well. इनिशियल शुरुआत आपके जो टीचर के रूप में एक्सपीरियंस को कैसे आप That was really challenging, definitely. Yeah, definitely. Oh no, definitely. All over the world. Parents को deal करना पड़ता है. Yeah, all over the world. The children is not only. कैसे आप? Before, in the initial period that was really difficult. Over there, the language problem is really difficult. It's not only the English, it's another European language as well. Because the kids come from that Europe as well. So they have French, they have the German, they have those French, German people. It's not necessary, they know the English as well. So they have this one language. So actually, being a multi-language, this is my strength. So some people just come over there. I know Spanish as well. I learn the Spanish as well. So because of those things, I help the parents. You just said. Before that, I had little difficulties. Lots of challenges with the kids, with the parents as well. Because they think, my kids, the Indian teacher, they are not very fully convinced. But I prove myself on top of that British teacher over there, I'm more qualified than them. तो मैंने अपने आप को प्रूव किया वहाँ. तो वो टीचर अभी जो मेरे अंडर में जो हमारे टीए हैं, जो टीचिंग असिस्टेंट होती है, they are from there. So I have to do that always. एक टीचर का जो सफर है, वो कितने साल से पढ़ा रहे हैं? I just 20 years. 20 years. अब पढ़ाने के और कुछ आपके मन में आता है कि और कुछ करना चाहिए? Yes. मैं बहुत कुछ कर रही हूँ अभी यहाँ. जैसे मैं वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया मैथ चैलेंज. I just take my schools to the different level. I just start a STEM with them. I run the STEM club.
doing the practical things with the kids according to their ability. So I am the coordinator. डिफरेंट जो सब्जेक्ट उनको स्टेम आपने कहा, तो उसको क्लब करने का विचार आपके मन में कैसा है? When my kids they are learning like तो बच्चों का होता है क्लास में, क्योंकि मैं बच्चों को देखती हूँ, जो बच्चों को टीच करती हूँ उनका मैं देखती हूँ कि उनमें और भी पोटेंशियल है, बट हमारे पास समय बहुत कम होता है। हमें स्कूल के जो कैरिकुलम है वो उनको उतने टाइम में अचीव करना होता है। तो मैंने मेरे जो प्रिंसिपल है उनको मैंने बोला कि आई जस्ट वांट टू डू एक्स्ट्रा थिंग विद दैम बिकॉज आई कैन सी दैट their potential, they can just do more, they can do better. And she has lots of faith in me. They said you can just start, and it's a STEM club I'm just running now 7 years. So and that's the way I just helping all the kids. I do for the physical activity. I just do the badminton things as well. Lots of different multicultural things I just want to introduce. I started doing the Diwali, like Indian culture. I just try to bring those things. So we have in our curriculum now we have the Diwali. They learn about the Diwali. They learn about the Holi, and we celebrate those things in our school. So I just bring those kind of things, our culture, to over there as well. आपको यहाँ जगह में इनवाइट किया गया, अदर सर्टेन प्लेस में और बच्चों और द स्ट्रीट बच्चों के, तो आप वहाँ क्या वहाँ भी इस तरह के स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं फिर आपने काम किया? हाँ, काम किया मैंने। तो वो सेंट बच्चे SCN चिल्ड्रन कहलाता है, तो स्पेशल एजुकेशन नीड। So just work in my initial period, like doing by those things, initial period of those things, before I just did some of the course over there. I have we have to up to date ourselves. Like every year, we have to do one course, some kind of things. I have plenty of experience now with those children. So I just did the course, and it's not I just jump into that one. I can handle these things. We are not handling; we are teaching the kids. डेवलपमेंट करके आप लोग इंडिया करने को और डेवलप करने को हमारे संस्था में जो बैठे हैं लोग मानते हैं, लेकिन आज भी डेवलपिंग तो यहाँ जो आपसे है वो आपने वहाँ स्पेशल बच्चों के लिए जो किया, तो वो क्या आपको इंडिया में कुछ हो रहा है, पहले से ज़्यादा कुछ हो रहा है, हर तरह से सुविधाएँ बड़ी कानून कभी क्योंकि आपने जब उसको किया है काम, तो इंडिया के बारे में भी आपने बिकॉज मैं तो यहाँ से बिलोंग करती हूँ ना, तो मेरे पास वो ऑलवेज अवेयरनेस होता है। तो यदि मैं वहाँ से आती हूँ, मैंने पुणे में भी बहुत जगह पे जाके सारे इक्विपमेंट दिए हैं, वहाँ से मैं इक्विपमेंट ला के उनको मैंने दिया है। हाँ, पुणे हाँ, UK में जो हम इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं सेंट चिल्ड्रन के लिए, तो वो सब ला के वो बॉक्स किस टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, बच्चे कैसे लर्न करते हैं, तो मैं पुणे में भी मैंने बहुत जगहों पे दिया है, दिल्ली में मैंने बहुत जगहों पे दिया है। पहले यहाँ के बारे में स्टडी किया? हाँ, मैं अवेयरनेस था, मतलब स्टडी मतलब जस्ट आपने जब पढ़ाई तो इतने सालों में यहाँ भी सिलेबस चेंज हुआ, पढ़ाने का तरीका भी चेंज हुआ, मेथड टीचिंग वो भी चेंज हुआ, तो ये आपने जो है आपने कैसे अपडेट किया अभी इंडिया के बारे में, या दोनों का कंपेरिजन करें तो कहाँ इंडिया कहाँ है और इंग्लैंड कहाँ? अभी आप जैसे देखिए वहाँ पे हम बोलते हैं वो डेवलप कंट्री है, स्टिल दे आर लर्निंग। इंडिया भी लर्न कर रहा है, वहाँ पे अवेयरनेस है, दे हैव द चिल्ड्रंस राइट। एट द मोमेंट वी डोंट हैव द चिल्ड्रंस राइट इन आवर कंट्री, वी हैव टू फोकस ऑन दैट वन एज वेल। वी हैव द रियली ग्लैड वी हैव द लॉ नाउ, we have all those things, we are working on those things, that is really really progressive things, so that is really nice। वहाँ पे अभी चिल्ड्रंस राइट्स है,
तो वो भी अभी लर्न कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि वो दे आर एक्सपर्ट, दे आर नॉट एक्सपर्ट, स्टिल दे आर लर्निंग। और हम भी लर्न कर रहे हैं इन सम ब्रांचेज, जैसे बोल सकते हैं हम आगे हैं, वो नहीं है अभी हमारा अवेयरनेस हमारे। तो जब कंपेरिजन अगर किया जाए इंडिया और, तो क्या हम सब कुछ नहीं, कल्चर और टीचिंग मेथड यहाँ का सिलेबस वगैरह, ये दोनों को अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ क्या अच्छा बात है, वहाँ क्या अच्छा है, क्या यहाँ कमी है, वहाँ भी क्या कमी है। अभी मैं हमेशा वो कहती हूँ कि मैंने वो दोनों कल्चर से मैंने अच्छी चीज़ ले ली है। आई लर्न द बेस्ट थिंग फ्रॉम बोथ कल्चर, आई नो हाउ टू बैलेंस। यहाँ पे मैं ऐसा कहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत बच्चों को तकलीफ होती है यहाँ। जितना बच्चे को ऐसे रगड़ के पढ़ाया जाता है, रगड़ के वो क्या आता है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। बच्चों को मार्क्स पे 99% आना चाहिए, 98% आना चाहिए। दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि हर एक बच्चा जो है अपने हिसाब में बहुत ब्रिलियंट है। वो हम यहाँ पे उनको एक सिलेबस दे देते हैं, एक चैप्टर देते हैं कि चैप्टर को रटना है, चैप्टर के अनुसार क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आप ठीक से दो, जो टीचर बताएंगे तो फिर नंबर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ का बहुत ही निगेटिव लगता है, ये नेसेसरी नहीं है। आपकी बातों को कल आया है और उसमें जो कवर है उसमें 98.2 नहीं 99, जो आपने जो कहा उसी की बात कर रहा हूँ। 99% मार्क्स लेकर हो गया और ये जो गैप है आपने कहा कि बहुत इसकी आवश्यकता की जरूरत नहीं, ये जब हो रहा है उन बच्चों को जो कम अंक लेगा क्या आपको लगता है कि टीचर के हुए इससे बच्चों को बचा सकते हैं? बच्चों के ऊपर 10 अनदर थिंग्स कम्स ऑन द मेंटल हेल्थ, क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम सेट कर देते हैं। क्योंकि आप देखें, आपने जो स्कूल में पढ़ा है, जो जानकारी आप वो इसमें यूज़ करते हो, आपको वो थ्योरी जो आपको रट्टा मारकर थ्योरी को आप पेपर पे लिखते हो, वो थ्योरी आप कहाँ पे यूज़ करते हो? आप वहाँ से निकलते हो, आप डिफरेंट आईआईटी में घुस जाते हो, मैनेजमेंट में चले जाते हो, तो वो चीज़ जो है वो कहाँ यूज़ होता है? मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया वो चीज़। मुझे जो स्किल्स, जो हमें कॉन्फिडेंस हो, जो मुझे लोकल बाकी चीज़, ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ नॉलेज ठीक नहीं है, बट नॉलेज का पैमाना जो आप करते हैं वो इंसान की एक्चुअल एबिलिटी नहीं, आप पैमाना वो कर रहे हैं, जज नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी बात करूँ तो आपने कॉमर्स से मास्टर किया, लेकिन आपको वहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग वो मैं कर रही हूँ, तो एग्जैक्टली आपने सही बोला। तो वो मैं वो नहीं करूँ, जैसा बच्चों को यहाँ पे कैसे करना है, उनको इतना कॉन्फिडेंस देना है, उनको सिर्फ नॉलेज देना है। रट्टा मारने से और 99% वो करने से वो मुझे मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि मैंने सुना है कि इंग्लैंड डेवलप है, ऑर्थोडॉक्स वो तो सब जगह पूरा वर्ल्ड है। इंग्लैंड के बारे में ज़्यादा पता नहीं अगर आपका वो वहाँ इतने साल वो पता नहीं, मुझे तो ऐसा क्योंकि मैं अपने को साबित करने में इतनी इन्वॉल्व थी, मतलब हूँ इतनी इन्वॉल्व थी कि आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट एंड व्हाट दे जस्ट थिंक अबाउट इट। Like, if you can see that all European country, even our country, in some part, is the orthodox kind of things. But now the new generation, they start changing the world. They start changing. Now the world is so getting so smaller. Like, we have the connectivity, so we can't hide anything. Definitely, I can see that lots of changes. I'm quite happy with all the changes. What's happening on the young generation now, they start achieving.
or they just their thoughts they change. That is really, really appreciative. I really appreciate those kind of things. I really feel in my time, those things was not here. Now as it starts, so it makes me feel really happy. But still, in the same time as well, in other things, I still think we need to improve those kind of things. So, Again, civic cells. yes, civic sense, without only one person, they can't change the whole society. The society, they have to work it together. So those kind of things. I really want to see those sides as well. हम महिला हैं तो एक भारत ऑलरेडी में विमेंस फ्रेंडली कॉम और अभी भारत में क्या महिलाओं के पॉजिटिव चेंज हुए हैं? Definitely, definitely. Now everybody start appreciating Nari Shakti. So actually believing in the Nari Shakti. They start acknowledge now. Before that, they don't acknowledge. They think the women is only for home. They have the homemaker. But now they can see the potential, and they start appreciating things. They start, and really, I'm glad to see that, male member, they start supporting their wife, they start supporting the daughters to achieve. They're fully involved with their education, they're fully involved, before that, I think in my time, if I'm going to say that, the girls, लड़कियां छोड़ो लड़कियां का भी कहाँ वो सफर करके इतना दूर वो कॉलेज में जाएंगी, उनको लोकली पढ़ा देते हैं, बेटे को भेजते हैं। अब वो बात नहीं है, पेरेंट्स बोलते नहीं क्षेत्र में तो ये तो सिर्फ लड़के जाते थे। इंजीनियरिंग साइंस सर्विसेज में सब जगह भी जो लड़कियां महिलाएं वो आगे अब पुरुषों से आगे मैं ये नहीं करती आगे दौड़ना है पीछे दौड़ना है तो लड़कियां ही टॉप 3 में लड़कियां हैं व्हाट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं वो तो वही वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें लड़कियां का नहीं, उनके पेरेंट्स और पेरेंट्स मीन्स मदर फादर बोथ, क्योंकि बोलते हैं कि दोनों की इससे ही होता है। ऐसा नहीं कि लड़कियां आगे बढ़ रही है और हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो तो होना भी नहीं चाहिए। अब पढ़ाती हैं शेयर हो रही है साइकोलॉजी भी अब तो उस हिसाब से बताया कि लड़कियां जो बहुत सिंसियर होती हैं, बहुत केयरिंग होती हैं, बहुत ये लड़के नहीं, मुझे लगता है कि हम जो एक धारणा बना लिया है कि लड़कियां केयरिंग होती है, सेंसिटिव होती है, लड़के इतना नहीं होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव हो गए तो वो सोसाइटी बना रही है ना। आप यदि बच्चे को घर में आप अपने बेटे बेटी दोनों को जब एक साथ पढ़ाते हैं, आप शुरू में उनका डिफरेंशिएट करें, उनकी थिंकिंग भी चेंज होती है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो फैमिली जो गार्जियन जो है तो लड़कों को ज्यादा पढ़ाने में लड़कियों पे भी ध्यान दिया तो सिर्फ लड़कियां सिर्फ आगे नहीं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं नहीं कर पाए, ये भी अब वो देखने को आ रहा तो डेफिनेटली देखिए बहुत ज्यादा इंडिया और इंग्लैंड में बहुत ज्यादा तूफान को बढ़ने नहीं। अच्छा अभी इस काम के लिए आपके बारे में और जैसे बच्चों के वहाँ आप क्या करते हैं यहाँ लगातार भी काम कर रहे हैं तो आपका क्या है क्या तो जैसे हमारी डिस्कशन हुई थी तो हमने बोला कि देखो हमें तो पहले अपने टीचर को ट्रेन करना है कि हम उन बच्चों को कैसे हेल्प करें, तो जब बिना नॉलेज का तो हम कुछ नहीं कर सकते। यदि आपके पास प्रॉपर आप यदि गाड़ी ठीक करना जानते हैं तो गाड़ी के पास
जाके क्या करोगे? तो आपको पहले सीखना पड़ेगा कि उसको कैसे करना है। तो पहले टीचर को आपको वो कोर्स करवाना, उनको एजुकेट करना पड़ेगा बच्चों के लिए। तो पहले तो हमारी वो होगी जरूरत है कि टीचर एक्सपर्ट हो, वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि बच्चों के लिए कौन सा इक्विपमेंट जरूरी हो, कैसे वो लर्न करते हैं। क्योंकि हर एक बच्चा जो है डिफरेंट होता है, बट कुछ एक्टिविटी हम वो एक कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्स्ट्रा जैसे इक्विपमेंट हुआ, कुछ स्टेशनरी, डिफरेंट स्टेशनरी है, वो सब हमें करना है। और वो सब तो सेकेंडरी फेज है। फर्स्ट फेज में कि हम अपने स्टाफ को ट्रेन करें। देवघर कैसा लगा? देवघर तो एक बार तो मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ, मुझे जैसे पूजा करने के लिए। तो अभी तो मुझे बुलाया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। आई एम रियली जब ग्रेटफुल। बड़े हो, बड़े हो रहे हो, जब बड़े रहे हो, इस बार फ्लाइट से हाँ, वो मैंने बहुत सुना था कि हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, बाहर भी काफी इसका टूरिस्ट के हिसाब से मतलब बाबा का मतलब दर्शन करने के लिए लोग। इंटरनेट, ये सब जो है वेबसाइट, सोशल मीडिया, इससे पहले हम दूसरे देशों के बारे में इस तरह से नहीं जानते, जितना बताया जाता था। अब जो है ये मीडिया जो है, इंटरनेट है, इसके इससे लगता नहीं है कि ये डिस्टेंस ये योगदान देगा कम। आपको क्या? एब्सोल्युटली राइट। कि अभी जो हमारा है, जो इंफॉर्मेशन हमें, एक इंफॉर्मेशन जो वहां पे दुनिया के एक दूसरे साइड में क्या हो रहा है, वो बाद में मुझे 1 महीने के बाद पता चलता था कि जब वहां से कुछ ऐसा हो, ट्रैवल धीरे धीरे होता था। अब तो वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या, सब लाइव होता है। तो हमारा, आप सही बोले कि बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न जो साइंस है, मॉडर्न, उसकी वजह से हम लोग लगता है हम लोग सब कनेक्टेड है। तो जब कनेक्शन इतना बहुत है, तो फिर हमें एजुकेशन में हमें डिस्टेंस क्यों करना है? हम भी तो अडॉप्ट कर सकते हैं ना, वहां पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, so we can adopt those things as well as quickly. So जैसे ऑटिज्म का वो हमारा वो सब्जेक्ट अवेयरनेस है, अब तो बहुत तेजी से प्रोग्रेस करना चाहिए इसमें। कभी समय निकालते हैं फिर बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इतना अपना आनंद दिया, थैंक यू वेरी मच। एक नए हस्ती के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ आपकी मुलाकात करने को तब तक के लिए